Welcome to Math Dimensions. Today we are going to do the last part of this chapter, that is the solved examples. These examples are very important from board point of view as they appear in board exams year after year. We are going to begin with example 1, which says check whether 4 to the power n can end with 0 for any natural number n. So we'll follow the same procedure as we followed one of the question in the exercise. We will be writing 4 to the power n as prime factorization of 4 raised to the power n. Now we'll write for any number to end with 0, it has to have 2 and 5 as its prime factors. Why 2 and 5 as its prime factors? Because 2 multiplied by 5 bache, if you do, it becomes 2 5s are 10. So automatically that number can end with 0. It has to have these as its factor. Because 4 to the power n, which is equal to 2 multiplied by 2 raised to the power 2, has only 2 as its factor. Therefore, 4 to the power n cannot end with 0. Hence proved. That's how we go about with this question. Let's look at now example number 2. Find the LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization. So method is same. We find the prime factors of 6. We find the prime factors of 20. Prime factors of 6 is 2 multiplied by 3 is 6. 20 is 2 tens are 10 is 2 5s are 10. Or I can write it as 2 to the power 2 multiplied by 5. This is 5 to the power 1. This is 2 to the power 1. This is 3 to the power 1. Now to calculate HCF. If you remember, HCF is the highest common factor. So when we look at the highest common factors, we look at the common factor first of all. Common factor is just 2 and 2. This is the common factor. So we write common factor. Because it is the highest common factor, we look at the lower power of the common factor. Lower power of the common factor is 1. So HCF is equal to 2. Right? So this is HCF of the given number. Now let's find the LCM. To find the LCM, we'll write again, LCM is the lowest common multiple. When we look at the lowest common multiple, first of all we write all the multiples present here once. So all the multiples are 2, 3 and 5. Now because it is the lowest common multiple, we look at the highest power of all these prime factors. Highest power of 2 is 2, highest power of 3 is 1 and highest power of 5 is 1. Right? So we write down the LCM as LCM of these two numbers is 4 multiplied by 3 multiplied by 5. 5 3s are 15, 15 4s is 60. Therefore, LCM is equal to 60. This is the LCM of the given numbers. So I hope you've understood this question. To find by prime factorization the LCM and HCF of the two given numbers. Let's move on to the third example. Third example says that find the HCF of 96 and 404 by prime factorization. चलिए अब देखते हैं इसमें हमने क्या करना है. सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 लिखेंगे, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 404 लिखेंगे. हम यहाँ रफ में प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 कर लेते हैं. 96 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो
हमें दिखता है 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, इवन नंबर है, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, और ये यहाँ पे अब 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5। So we can write this is 2 to the power 5 multiplied by 3 is prime factors of 96. अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं 404 के प्राइम फैक्टर्स। अगेन इवन नंबर है, 2 से कर लें, 202, 2101 है ना। अब 101 itself is a prime number, so इसका क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 multiplied by 101। अब HCF, सबसे पहले HCF निकालना है। HCF में हम पहले कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स सिर्फ 2 है। अब बिकॉज ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो लोअर पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर दैट इज़ 2। सो हमारा HCF कितना आ गया, HCF अब हमारा आ गया 4। हम एक तरफ लिख लेते हैं HCF इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट, टू फाइंड LCM विल यूज द फॉर्मूला LCM multiplied by HCF. We'll write now LCM multiplied by HCF is equal to product of two numbers. ये हमारा फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। LCM multiplied by HCF is equal to product of two numbers. इसी फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं LCM of 96 and 404 multiplied by एक बार प्रॉपर लिख लेते हैं LCM of 96 and 404 multiplied by HCF of 96 and 404 is equal to 96 multiplied by 404। सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब HCF तो हमारा आया था, HCF कितना आया था यहाँ पे 4। LCM हमें निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू 96 multiplied by 404। This implies LCM of these two numbers 96 and 404 is equal to 96 multiplied by 404 upon 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 0 0, 4 1 ज़ा 4, यानी 96 101 मल्टीप्लाइड बाय 96 करना है हमने। ठीक है, सो 6 1 ज़ा 6, 6 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 9 1 ज़ा 9, 9 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9, 6 9 6 9 इज इक्वल टू 9696। ये हमारा ब्यूटीफुल आंसर है LCM का। एक चीज़ हमें इस क्वेश्चन में ध्यान में रखनी है कि अगर क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द HCF ऑफ नंबर्स हेंस फाइंड द LCM, उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें पूछा हो फाइंड द HCF एंड LCM, तो हम नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द HCF एंड LCM बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे हमें दोनों ही फाइंड करने हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। इन दैट केस वो स्पेशल फॉर्मूला हमें लगाने के लिए ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, हम इसको दोनों को ही प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। Let us see, we have to find HCF and LCM of these three numbers now. We'll take up the three numbers and write the prime factors of three numbers 6, 72 and 120। 6 के प्राइम फैक्टर्स आसान है, 2 3 ज़ा 6, 72 के हम साइड में निकाल लेते हैं, 72 7 8 9 इट गोज़ विथ 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8,
and 2 2s are 4 and 2 1s are 2. अब 2 कितनी पावर है? 1 2 3. आई राइट 2 to the power 3. और 3 कितनी पावर है? 1 2. 3 to the power 2. इसी तरह 120 के फैक्टर्स, इसको भी हम 3 से कर सकते हैं. 3 4s are 12, 0 2 20 2 10 2 5s are 10 and 5 1s are 5. Up 2 is how many times? 1 2 and 3. 2 to the power 3. 3 is 1 time and 5 is also 1 time. This we are writing just for the sake of, this is for just our convenience. हमें याद पता लग जाए कि पावर 1 है, या अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी 1 ही मतलब होता है उसका. अब फाइंड करते हैं हम HCF. HCF में सबसे पहले होता है कॉमन. द वर्ड की वर्ड हियर इज कॉमन. की वर्ड HCF is common, and because this is highest we write the smallest power. ठीक है. सो सबसे पहले कॉमन देखते हैं. 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, सो 2. 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, सो 3 ऑल्सो. और 5 यहीं है, बस कहीं और नहीं है, सो 2 and 3. अब दूसरा कीवर्ड है स्मॉलेस्ट पावर. 2 की स्मॉलेस्ट पावर आप देखिए यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 3 की स्मॉलेस्ट पावर भी 1 है. सो हमारा HCF कितना हो गया? HCF हो गया 2 multiplied by 3 is 6. Right? So this is our HCF of the given numbers. अब LCM. LCM कैसे निकालते हैं? LCM के कीवर्ड्स क्या होते हैं? LCM के कीवर्ड सबसे पहले all factors. So we'll write all factors first. all factors में 2 है, 3 है और 5 है. और यहाँ पे बिकॉज ये लोवेस्ट है, सो वी राइट द हाईएस्ट पावर. कीवर्ड्स को नोटिस करेंगे और लिखेंगे. हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 3, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इज 2 एंड हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इज 1. राइट. सो जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा HCF कितना आता है? लेट अस सी. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3 2s are 3 3s are 9 and 5. 9 5s is 45. 45 multiplied by 8. 40 32 36 360. सो हमारा LCM हो गया 360. हाईलाइट हमेशा बोर्ड में ध्यान रखना है. आपने अपने सारे के सारे आंसर्स हाईलाइट करने हैं. इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस when an examiner is checking your paper. So HCF is 6 and LCM is 360 for this question. पहुंच गए हम एग्जाम्पल नंबर 5 पे, जो बोलता है प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर. हमने इस टाइप के क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज 1.2 में भी बहुत सारे किए हैं. अब एक एग्जाम्पल भी करके देखते हैं. सॉल्व एग्जाम्पल जो आपकी बुक में है. एंड लेट मी टेल यू, सॉल्व एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जो भी एग्जामिनेशंस पेपर सेट करता है उसके लिए फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं. सो हमें हर सॉल्व एग्जाम्पल करना चाहिए. इसीलिए सॉल्व एग्जाम्पल्स के वीडियोस आपको सेपरेट ही मिलेंगे, अलग ही मिलेंगे. सो विल लुक एट, विल डू इट द सेम मेथड. We'll prove it with the method of contradiction. We'll say let √3 be a rational number. क्योंकि ये रैशनल नंबर है, therefore can I write √3 as a, √3 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. यही बोला था ना आपको, ये एक स्टार स्टेप होता है. ये वाला जो स्टेप होता है ए एंड बी आर को-प्राइम इज अ स्टार स्टेप. ठीक है, ये लिखना ज़रूरी होता है. सो विल राइट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. वी गेट 3 इज इक्वल टू a square upon b square.
or I can write it as 3b square is equal to a square. This is equation number 1. This implies 3 divides a square. थ्योरम नंबर करी थी ना आपने ये वाली थ्योरम नंबर 1.3 ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर. ये उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करी थी, पिछले वाले वीडियो में. आप वहाँ उस वीडियो में जाके इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. और कैन आई राइट 3 डिवाइड्स ए. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई. ये भी हमें हाईलाइट कर के रखनी है. 3 डिवाइड्स ए. नाउ let a is equal to, because it is root 3, so we'll write 3c. Let a is equal to 3c. Substituting a is equal to 3c in equation 1. So we'll write 3b square is equal to 3c का whole square. 3b square is equal to 3 3s are 9c square. हम इसको अगर देखें, ये 3 1s are 3, 3 3s are 9. हमें क्या मिला यहाँ पे? This implies 3c square is equal to b square. Yes बच्चे. So we'll write this implies 3 divides b square, or can I write 3 divides b? Yes, I can absolutely write it. 3 divides a and 3 divides b. This is my equation number 3. अब 3 divides a और 3 divides b, यानी 3 is a common factor of both a and b. Equation 2 and 3 implies 3 is a common factor of both a and b, but this contradicts the fact that a and b are co-prime. अब co-prime नंबर कौन से होते हैं? जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर होता है 1, यानी कि उनका HCF 1 होता है. पर यहाँ पे तो 3 भी कॉमन फैक्टर बन गया. दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are co-prime. Therefore our assumption is wrong. Hence root 3 is irrational. And then finally क्या करना है बताओ ज़रा. फाइनली हमें इसको भी हाईलाइट करना है. अब हम पहुंच गए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पे. इसको मैं बोल दूँगी ये 5 स्टार क्वेश्चन है. अब ये 5 स्टार क्यों है, इसका रीज़न क्या है वो भी मैं बता देती हूँ. अब हमने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया था, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल नंबर. हमने रूट 3 को इरेशनल सेपरेट प्रूव किया था, फिर इन दोनों को इकट्ठा लिया था, फिर प्रूव किया था कि वो इरेशनल है. बोथ वी हैड डन बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. अब इस क्वेश्चन को हैंडल हम एक और तरीके से करेंगे. ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको पहचान हो जाए कि इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं. अब ये 2 डिफरेंट तरीके क्या हैं वो तो हमने पहला तरीका समझ लिया जहाँ पे हमने रूट 3 को अलग से प्रूव किया. अब हमें यहाँ पे 5 माइनस रूट 3 इकट्ठा ही हम प्रूव करेंगे इरेशनल है. तो द मेथड विच आई विल बी डूइंग हियर इज काइंड ऑफ अ 2 मार्कर क्वेश्चन. समटाइम्स इट्स ऑल्सो एज आस्क्ड एज अ 3 मार्कर, डिपेंड करता है. शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. इसमें मैं एक एक्स्ट्रा कुछ वर्ड्स जोड़ रही हूँ जो हम अज्यूम करेंगे. वो है गिवन दैट, जो एग्ज़ाम में भी आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में इस फॉर्म में आता है. गिवन दैट रूट 3 इज़ एन
irrational number. ये हम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ऐसा आता है. बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? शो दैट 5 minus root 3 is irrational given that root 3 is an irrational number. मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन 2 मार्कर आता है. ठीक है. सो अगर मान लो ये क्वेश्चन 3 मार्कर आया, उसमें हमें रूट 3 को अलग से प्रूव करना है इरेशनल, फिर कंबाइन करके प्रूव करना है. पर अगर यहाँ पे गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल, तो हमें रूट 3 को अलग से इरेशनल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. सो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं? लेट अस सी. विल राइट गिवन सॉल्यूशन. ठीक है. we'll write given root 3 is irrational number. Yeah. To prove five minus root 3 is irrational. ठीक है. सो हम लिखेंगे अब, ये हमारा गिवन है, ये टू प्रूव है. अब आ गया हमारा प्रूफ. प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? लेट अस अज्यूम 5 minus root 3 is rational. Therefore 5 minus root 3 is equal to a upon b. अब ये a and b तो इंटीजर्स हैं, तभी रैशनल बनते हैं ना. आर इंटीजर्स एंड आर को प्राइम. ठीक है. को प्राइम मीन्स उनका HCF 1 है. अब मैं इसको क्या करती हूँ, 5 माइनस ए अपॉन बी इधर ले आई और रूट 3 को मैंने सेपरेट कर लिया. अब इसमें मैंने एलसीएम लिया, बी एलसीएम आया, यहाँ बन गया 5b माइनस ए इज इक्वल टू रूट 3. राइट. ये आ गया. अब व्हाट डज इट शो? This shows that root 3 is rational. Why it is so? Because 5b minus a upon b, they are integers. किया था ना. Because a and b are integers. Right. But we know root 3 is irrational. This is given to us. From where? From given. This contradicts the fact that 5 minus root 3 is rational. Therefore 5 minus root 3 is irrational. Of course we can all write hence proved. We've reached to the last example of this exercise. Question क्या बोलता है? Show that 3 root 2 is an irrational number. We follow this in the same manner as we did in the previous question. Previous example में भी हमने जैसे प्रूव किया था, वही methodology इस example में करेंगे. अब ये याद रखना है, show that 3 root 2 is an irrational number. वही चीज़ यहाँ दोबारा लिखेंगे, वो है given that root 2 is an irrational number.
irrational number. आपको पहले भी बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो मैं इसको भी 5 स्टार क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगी. ठीक है, और ये क्वेश्चन हमें कैसा आता है, अगेन 2 मार्कर या फिर 3 मार्कर. Let us proceed now. What is given to us? Given that root 2 is an irrational number. ये हमारा गिवन है. What is to prove? To prove 3 root 2 is irrational, isn't it? अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं. हम वही प्रूव करेंगे विद द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. वी विल अज्यूम लेट 3 root 2 is rational number. Therefore, can I write 3 root 2 as a upon b? Yes, I can write. अब इसमें क्या लिखना है, a and b are integers. वो तो है ही है बिकॉज ये रैशनल है, और ये क्या है, को प्राइम है. आपको पहले भी बताया था, ये लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो को प्राइम है. ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. अब मैं क्या करूँगी, रूट 2 को एक तरफ लिखा और यहाँ पे a अपॉन 3b, 3 को दूसरी तरफ ले आए. ठीक है, नाउ इसमें हम ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ करेंगे. ऑब्जर्वेशन, दिस शोज दैट root 2 is a rational number. क्यों हम बोल रहे हैं इसको रैशनल नंबर, क्यों, बिकॉज a अपॉन 3b क्या है, आर इंटीजर्स. ये हमने किया था ना. बट वी नो that root 2 is irrational. कहाँ से पता है हमें ये हमने गिवन में देखा था. फ्रॉम गिवन. Therefore, this contradicts the fact that three root 2 is a rational number. We'll say hence our assumption is wrong. Is wrong. We say therefore 3 root 2 is an irrational number. And finally we can always write hence proved. This was the last example of the chapter. If you have any question related to real numbers chapter, do write in the comment box and we will get in touch with you. In our next video, we are going to begin with a new chapter, the second chapter of the NCERT book, that is polynomials. Thank you for watching. Math Dimensions is one-stop channel for concept-based learning and understanding, and also for preparation of board exams. Do like this video and also share and subscribe to the channel.